Hello everyone. So we are seeing first chapter, that is the living world. Now in this chapter we are going to see the last point of the chapter, that is taxonomical aids. So previously in the previous video we have seen about the taxonomy. Taxonomy क्या है? तो it is just a branch of biology in which identification, nomenclature and क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डन. तो ओवरऑल ऑर्गेनिज्म की किसी भी ओवरऑल स्टडी की जाती है इन द टैक्सोनॉमी, राइट. अब ये स्टडी करने के लिए डिफरेंट मीन्स आर नेसेसरी, डिफरेंट टेक्निक्स आर नेसेसरी या फिर डिफरेंट एड्स आर नेसेसरी. उन सभी एड्स को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स. सो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? दीज आर नथिंग बट डिफरेंट टेक्निक्स दैट आर गोइंग टू help us in studying the organism. Okay, so we have total these 8 taxonomical aids, and these are botanical garden, zoological park, museum, herbarium, key, monograph, manual and flora. So total we have 8 taxonomical aids that we are going to study in today's lecture. Okay, so let's start with the first one, and the first one is the botanical garden. ओके, सो आपने आपके कॉलेज के कैंपस में एक रेस्ट्रिक्टेड गार्डन देखा होगा, राइट. अपने जो नॉर्मल गार्डन्स रहते हैं वहाँ पे यूजुअली क्या रहता है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स रहते हैं, राइट. कुछ फ्लावर प्लांट्स रहते हैं. लेकिन आपके कॉलेज में जो रेस्ट्रिक्टेड गार्डन आपने जो देखा है ना, वहाँ पे आपको ऑर्नामेंटल प्लांट्स या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे नहीं दिखाई देंगे. आपको इस गार्डन में डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स दिखाई देंगे, राइट. इस गार्डन को हम कहते हैं बोटानिकल गार्डन. ओके, अब इस बोटानिकल गार्डन में इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाया है इसने? तो बोटानिकल गार्डन जो है इट इज प्रिपेयर्ड फॉर स्टडिंग. ओके, उस प्लांट को, डिफरेंट प्लांट को स्टडी करने के लिए इसे बनाया गया है. अब इसे बनाते कैसे हैं? तो फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट प्लांट्स आर कलेक्टेड, और इस प्लांट्स को एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो किया जाता है, एंड दैट एरिया इज नोन एज बोटानिकल गार्डन, राइट. अब इस बोटानिकल गार्डन में जो डिफरेंट प्लांट्स हैं इनको लेबल भी किया जाता है. अब इन्हें लेबल कैसे किया जाता है? तो टोटल 3 लेबल्स आर गिवन, और वो लेबल्स क्या है? फर्स्ट है उस प्लांट का कॉमन नेम, या फिर जिसे हम कहते हैं लोकल नेम. ओके, लेबलिंग में फर्स्ट क्या दिया जाएगा? लोकल नेम या फिर कॉमन नेम दिया जाएगा. देन सेकेंड साइंटिफिक नेम इज गिवन, जिसे हम कहते हैं बोटानिकल नेम ऑल्सो, right. And third label is their family, that plant belongs to which family, that is also mentioned. ठीक है, तो बोटानिकल गार्डन में क्या होगा? डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट होगी, एंड एवरी प्लांट इज लेबल्ड विथ लोकल नेम, बोटानिकल नेम एंड फैमिली नेम. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट few very famous botanical garden, right. The first famous botanical garden is Indian Botanical Garden. Okay, first botanical garden है Indian Botanical Garden, which is present in Havra, Kolkata. Then the second very famous garden is Royal Botanical Garden, which is present in Kew, which is in UK, England. Then the third one is National Botanical Research Institute. Which is present in India only, in Lucknow. Okay, so total 3 famous botanical gardens are there. First one है Indian Botanical Garden, जिसकी लोकेशन है खावरा, कोलकाता. Second है Royal Botanical Garden, which is located in Kew, England. And the last one is National Botanical Research Institute, which is located in Lucknow. Okay, so let's start with the first one, that is this Indian Botanical Garden. Okay, अब ये जो Indian Botanical Garden है, which is present in Kolkata, it is famous for total 3 things. अब ये 3 things क्या है? That we'll see.
This garden is famous for total 3 things. The first thing है, it is the great banyan tree. Great banyan tree. Then the second famous thing is giant water lily. Giant water lily. And the third famous thing is pandanus. Okay, so it is famous for 3 things: great banyan tree, giant water lily, and pandanus. So let's talk about the first one, that is the great banyan tree. So you all know what is banyan tree, right? आपने देखा भी होगा banyan tree usually क्या रहता है? It is very large tree, right? It's like this. और इस ट्री के कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं विच ग्रोज टुवर्ड्स द ग्राउंड, है ना, राइट? तो ये रहता है banyan ट्री. ओके, अब यहाँ पर जो banyan ट्री है ना, इट इज नोन एज ग्रेट banyan ट्री. अब इसे ग्रेट क्यों कहा है? बिकॉज दिस ट्री इज वेरी ओल्ड. दिस ट्री इज लिटरली 250 years old. 250 years old ट्री है ये. अगेन ये जो ट्री है, इट हैव अबाउट 2800 prop roots. 2800 prop roots प्रेजेंट है. अब ये prop roots क्या है? तो मैंने यहाँ पर जो आपको ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बताए थे विच ग्रोज टुवर्ड्स द ग्राउंड, दीज आर नोन एज prop roots. तो इस प्लांट को कितने हैं? 2800 prop roots present. Again, this plant covers about 14,500 meters square area. That big is the plant. 14,500 meters square इतना एरिया ये प्लांट कवर करता है. ओके, प्लांट बहुत लार्ज है. That's why it is known as great banyan tree. Then another interesting fact about this plant is few years back ये प्लांट का जो मेन स्टेम है, this part, it got infected. अब इन्फेक्शन होने की वजह से इस प्लांट का जो ये स्टेम पार्ट है, it has been removed now. तो प्लांट जो है now it is surviving only on these prop roots. Okay, so this is about the first one, great banyan tree. Then let's talk about the second one, that is giant water lily. अब water lily तो आपको पता है aquatic flowering plant है, right? Leaves usually एक राउंड कलर, राउंड ग्रीन कलर के लीव्स आते हैं, राइट? तो यहाँ पर जो वाटर लिली है, इट इज़ वेरी जाइंट. अब जाइंट एग्जैक्टली क्या है? तो इस प्लांट के लीव्स आर वेरी लार्ज इन साइज. लिटरली लीव्स जो है इनका साइज है अबाउट 2 to 3 मीटर. 2 to 3 मीटर इतना डायमीटर है ये लीव्स का. अब ये डायमीटर इतना बड़ा है कि लिटरली 5 to 6 people can sit on these leaves. Okay, and that's why it is known as giant water lily. Okay, ये leaves जो है ये नॉर्मली जो जैसे लीव्स रहते हैं वाटर लिली के वैसे ही है कलर में. लाइक अपर सरफेस जो है ये ग्रीन आता है, लोअर सरफेस इज लाइक ब्रॉन्ज, थोड़ा सा कॉपर कलर टाइप कलर आता है. ओके, सो दिस इज द सेकेंड वन, जाइंट वाटर लिली. देन द थर्ड वन इज पैंडानस. अब ये पैंडानस क्या है? इट इज अगेन वन टाइप ऑफ प्लांट ओनली. द प्लांट विच हैव मल्टीपल रूट कैप्स. मल्टीपल रूट कैप्स प्रेजेंट है. रूट कैप्स आपको पता है ना? रूट्स जो है ये रूट्स पर जो स्मॉल हेयर लाइक रूट्स जो प्रेजेंट रहते हैं, दीज आर नोन एज रूट हेयर्स, राइट? इस रूट हेयर का जो टीप है, इट इज प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वन लेयर विच इज नोन एज रूट टीप, रूट कैप, सॉरी. सो दिस पैंडानस प्लांट जो है इसके रूट पे मल्टीपल रूट कैप्स प्रेजेंट है. ओके, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द फर्स्ट वन, इंडियन बोटानिकल गार्डन, और इसके टोटल 3 फेमस थिंग्स. ओके, देन 2 more botanical gardens are there. जैसे कि मैंने बताया था, रॉयल बोटानिकल गार्डन विच इज प्रेजेंट इन क्यू इंग्लैंड, एंड द थर्ड वन नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज प्रेजेंट इन लखनऊ. अब टॉकिंग अबाउट दिस वन अगेन, इंडियन बोटानिकल गार्डन, ये जो नाम है ये पुराना नाम है. नाउ द नेम हैज बीन चेंज्ड एंड द न्यू नेम इज आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन. ओके, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द बोटानिकल गार्डन. Now
let's talk about the second taxonomic aid, that is zoological park. The second taxonomic aid कौन सा है? तो it is zoological parks, which are commonly known as zoo. ओके तो ये जू तो सभी ने ऑब्जर्व, सभी ने देखे होंगे, राइट? जू में क्या रहता है? तो डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना? तो ये वाइल्ड एनिमल्स को एक एनक्लोज्ड स्पेस में रखा जाता है, इन्हें हम कहते हैं जू, राइट? तो ये क्या है जू? इट इज एनक्लोज्ड स्पेस या फिर एनक्लोज्ड एरिया वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्लेस्ड. ओके इसे हम कहेंगे जू. अब जू में हमने देखा कि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्लेस किया जाता है, राइट? अब इसकी जरूरत क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग दिस जू? इसका पर्पस क्या है? तो फर्स्ट वन है, वो है एंटरटेनमेंट, राइट? ऑब्वियसली यू गो टू जू, डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, यू गेट एंटरटेन, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट पर्पज. देन द सेकेंड पर्पज इज इट इज हेल्पफुल इन स्टडिंग डिफरेंट एनिमल्स. ओके आपको वहाँ पर अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स दिखाई देंगे. वाइल्ड एनिमल्स तो आपको आपके सराउंडिंग में नहीं दिखाई देंगे, राइट? दे आर यूजुअली इन द फॉरेस्ट. तो इन्हें आपको ऑब्जर्व करना है, स्टडी करना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? एक तो फॉरेस्ट या फिर जूज. तो जू इज द बेटर ऑप्शन, राइट? सो the zoo जो है these are also helpful in studying different animals, wild animals. And third and very important function या फिर purpose of this is it helps in protection of endangered animals. zoo जो है they also helps in protection of endangered animals. कैसे? तो zoo में जो है एक एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है, ओके जो एनवायरमेंट उस एनिमल्स के लिए ना फेवरेबल हो. उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है कुछ उस तरीके का एक एनवायरमेंट जू में बनाया जाता है, और इस वजह से वो जो एनिमल्स है इजीली उसे अडाप्ट कर सकते हैं एंड ग्रो कर सकते हैं. तो कई बार ऐसे होता है नेचुरल हैबिटेट में कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है, दे आर गेटिंग एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. तो ऐसे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है. तो इन्हें हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो आप उन्हें जूज में रख सकते हो, उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह दे सकते हो, और दैट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन. ओके सो दिस इज अबाउट द जू. तो जू में हम क्या करेंगे? तो एनिमल्स का स्टडी किया जाएगा यहाँ पर, राइट? और जो हमने बोटानिकल गार्डन्स देखे थे यहाँ पे प्लांट्स का स्टडी किया जाएगा. ठीक है. सो दो टैक्सोनॉमिक एड्स हो गए हैं, बोटानिकल गार्डन एंड सेकेंड वन इज द जूलॉजिकल पार्क विच इज कॉमनली नोन एज जू, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज म्यूजियम. अब म्यूजियम आपने देखे होंगे, राइट? म्यूजियम में क्या किया जाता है? तो डेड प्लांट्स रहते हैं, डेड एनिमल्स है, या फिर इंसेक्ट है, बर्ड्स होंगे, इनको प्लेस किया जाता है म्यूजियम में. एक इनक्लोज्ड कैबिनेट रहती है ग्लास की जहाँ पे इनको प्लेस किया जाता है, उसे हम कहते हैं म्यूजियम, राइट? तो म्यूजियम क्या है? तो डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट एनिमल्स, दीज आर प्रिजर्व्ड इन दिस, राइट? इनको प्रिजर्व किया जाता है, लेकिन दे आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिमेंस. स्पेसिमेन के फॉर्म में इनको प्रिजर्व किया जाता है. Museum is the place where different plants, dead plants and animals are preserved. In the form of specimen. अब ये स्पेसिमेन क्या है कहोगे आप? तो सिंपल सा है, आप
जो कुछ भी म्यूजियम में देखते हो, सपोज आपके पास टाइगर दिख रहा है, आपको टाइगर रखा हुआ है इसमें म्यूजियम में, या फिर कोई इंसेक्ट प्लेस की हुई है, या फिर कोई प्लांट प्लेस किया हुआ है, राइट, इसे हम कहेंगे स्पेसिमेंस। टाइगर एक स्पेसिमेन है, वो इंसेक्ट जो रखी है प्रिजर्व की हुई, दैट इज वन स्पेसिमेन, कोई बर्ड रखा है, दैट इज स्पेसिमेन, ठीक है। सो म्यूजियम क्या है, इट इज द प्लेस वेयर डिफरेंट प्लांट एनिमल्स, डेड प्लांट एंड एनिमल, दे आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिमेन, राइट। अब डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल, इनको प्रिजर्व करने के लिए एक ट्रीटमेंट देना जरूरी है, ओके। सपोज मुझे जो है प्लांट को प्लेस करना है म्यूजियम में, ओके, या फिर इफ इट इज स्मॉल एनिमल, ओके, इनका मुझे स्पेसिमन रखना है, ओके, म्यूजियम में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इसे ट्रीट करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या दी जाती है, तो दिस प्लांट एंड द एनिमल इज ड्राइड, राइट, ये जो डेड बॉडी होगी इसे ड्राई किया जाता है, देन इट इज ट्रीटेड विथ सर्टन केमिकल्स, ओके, एंड देन दे आर प्रिजर्व्ड, ओके। तो अगर प्लांट है या फिर द स्मॉल एनिमल्स आर देयर, देन ट्रीटमेंट क्या होगी, दे आर ड्राइड, ट्रीटेड विथ केमिकल एंड देन दे आर प्रिजर्व्ड, ओके। देन सपोज मुझे जो है इंसेक्ट को म्यूजियम में प्लेस करना है, ओके, इंसेक्ट फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई लेंगे हम, बटरफ्लाई है, ठीक है। अब इसे क्या किया जाता है, बटरफ्लाई या फिर इंसेक्ट है, तो फर्स्ट इट इज अगेन ड्राइड, लाइक प्रीवियस वन, ड्राइड किया जाता है, देन इट इज अगेन ट्रीटेड विथ सर्टन केमिकल्स एंड देन दे आर पेन्ड। उनके जो विंग्स है दे आर वाइड ओपन एंड देन दे आर पेन्ड। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई, सपोज दिस इज द बटरफ्लाई है, ओके, इसके जो ये विंग्स है इनको ओपन किया जाता है, ओके, एंड देन इन पे जो है ना पिन लगाई जाती है, लाइक दिस, ठीक है। सो इंसेक्ट्स जो है दे आर ड्राइड एंड दे आर पिन्ड। देन द नेक्स्ट वन है, सपोज लार्जर एनिमल्स आर देयर, लार्ज एनिमल्स आर देयर, ओके, तब इनके लिए अब कोई कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट दी जाती है। यहाँ पे क्या किया जाता है, इफ द एनिमल इज लार्ज, लाइक सपोज इट इज टाइगर या फिर मंकी है या फिर एलिफेंट है, राइट, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, उनके जो कुछ भी इंटरनल ऑर्गन्स है इनको रिमूव किया जाता है, एंड देन इनसाइड द बॉडी सम मटेरियल्स आर स्टफ्ड, दे आर स्टफ्ड, ओके, एंड देन दे आर प्रिजर्व्ड। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, स्टफिंग किया जाएगा इन केस ऑफ लार्ज एनिमल्स। अब आपने अगर म्यूजियम देखे होंगे तो आपने म्यूजियम में कुछ स्केलेटन्स भी देखे होंगे, राइट, तो समटाइम्स स्केलेटन्स आर आल्सो प्लेस्ड इन द म्यूजियम। These skeletons are usually obtained from fossils, ठीक है। So total 4 things are there which are placed in the museum. Small, अगर प्लांट है या फिर स्मॉल एनिमल्स है तो उनको ड्राई किया जाएगा, then they are preserved. If the insects are there like butterfly, so they are dried and then they are pinned. Then if the large animal is there, it is stuffed and the skeletons are there which are usually obtained from the fossils. Okay, so this is all about the total 3 taxonomical aids: botanical garden, zoological park and museum. Okay.